यहाँ पे ये आ गया ऊपर। हाँ जी स्टार्ट करना है फिर सोचते हैं क्या स्टार्ट हाँ ये तो weaknesses से structured quarterly NT collect with the respective HRBPs and Shweta. क्या बोलते हो? अच्छा मेंशन नहीं करते अगर वो फ्री होके आना चाहते हैं structure and quarterly ठीक है principal में टाइम लगता है और नहीं लिखते चलो ठीक है वो तो पता है अच्छा मैंने वो सब नहीं लिखे जो आपने एडिशनल ऐड किए मैंने बात की अपॉर्चुनिटीज क्या एग्जिट स्ट्रेटजी मतलब अच्छा अच्छा वो जो एग्जिट मैनेजमेंट किया था स्टे एग्जिट वो इम्प्लीमेंटेशन एग्जिट इम्प्लीमेंटेशन वो एग्जिट मैनेजमेंट एग्जिट The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again. और सौरभ ये भी एक सेकंड ना श्वेता ने लिखा था हमको Versus a develop people manager capabilities and everything. So focus on people. उन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा these are time where assistant development by using better interventions focus to the people management in different functions और कुछ Hello, hello.
हेलो, आ रही है आवाज? हेलो Yes, Swarni ma'am. हेलो, Yes, ma'am. We are गुड able to hear. आफ्टरनून एवरीवन. Good afternoon, ma'am. Janak here. Can you hear me? हेलो एक सेकंड मैम. जनक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay. Can somebody else confirm? मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, आ रही है. Yes. Okay. Okay. Thank you. Yes, sir, आ रही है आवाज. Yeah. स्वर्णी मैम आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, ओके. मैं आवाज आ रही है स्वर्णिम जी? ओ ओके मैम. तो फाइनली वेलकम स्वर्णिम जी. Thank you, sir. Thank you, Janaki ji. थोड़े बहुत Finally, टेक्निकल we are ग्लिचेस here. होते हैं करके ही जल्दी ज्वाइन करते हैं और उसमें. So good afternoon everyone. We'll be starting in just 1 or 2 minutes. So good 16-17 people have joined today. So shall we begin, Swarnim ji? जी. Let's. सब लोग आ गए हैं. हाँ. So let's respect the time. So punctuality is one value which nobody is there to admire. Correct. Okay, So तो इंट्रो वगैरह करने में टाइम हो निकल जाएगा. Till then 2-3 मिनट तो निकल ही जाएंगे. So let me start. Okay. Yes. So good afternoon everyone. Today is another round of Tally knowledge session on Thursday. Today we have CA Swarnim Raiji with us, who will be taking us through what are the different aspects, क्या अलग अलग पहलू होते हैं डेवलपमेंट सेक्टर की जब हमें अकाउंटिंग करनी होती है. And more importantly, she will also touch with some of the key features in Tally Prime which can help in doing so. Before we begin, allow me to introduce you to the speaker. So as I mentioned, the speaker is CA Swarnim Rai. She is a chartered accountant and a member of ICAI since 2015. She has been appearing on before various authorities in respect to litigation of in litigation matters of various clients. She has been rendering consultancy, opinion, and handling faceless assessments in various matters of income tax and GST. She has also conducted several statutory audits, tax audits of various entities, bank audits, and she has good amount of expertise and query handling capacity in the field of accounts and accounting. She also has an experience in queries and topics related to FEMA. So in such a short span, we have a speaker who has developed such a diverse set of experience, and I'm sure the next 1.5 hours is going to be filled with a lot of experiences. तो दोस्तों बने रहिएगा
And having said that, let me now request Swarnim ji to take over the forum and share her experience with us on working on development sector in accounting. Thank you so much, Janak ji. Good afternoon, everyone. Welcome in today's Knowledge Beat session. I personally thank Tally for organizing this wonderful knowledge session, and I'm here to present my views on accounting in Tally Prime for development sector organization. जैसा कि हम सभी जानते हैं, NGOs, charitable trust, इन सभी को काफी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है टू डिफरेंट अथॉरिटीज. जैसे कि इनकम टैक्स में अलग ही सेक्शन है अपना सेक्शन 12 एंड 11, जो सिर्फ एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट के नॉर्म्स के लिए है कि आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है, किस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी है, क्या ऑडिट रिपोर्ट रहेगी, आपको कितना यूटिलाइजेशन करना है, ग्रांट जो आपको ग्रांट रिसीव होती है 85%, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपको एक्यूमुलेट करना पड़ता है नेक्स्ट 5 years. इसकी डिटेलिंग में तो अपन नहीं जाएंगे अपन, बट अकाउंटिंग में जाएंगे कि अपन क्या अकाउंटिंग स्ट्रक्चर करें एनजीओ का, सो दैट वो इनकम टैक्स के ये सारे जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल कर पाए. साथ ही आप जानते हैं कि एफसीआरए एक्ट भी अप्लाई होता है अगर एनजीओ फॉरेन फंड्स में डील करता है. और अभी रिसेंटली अमेंडमेंट जितने आए हैं उसमें कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने तक अपन बुक कर सकते हैं. पहले जो 50% था अब वो 20% हो गया है, तो उसके कारण भी सेम अकाउंटिंग एरिया में फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि अब कैसे अपन अकाउंटिंग करें. थर्ड, इन सबसे अपन ये सारे रिपोर्टिंग अथॉरिटी तो ठीक है, बट जो अपन को ग्रांट देते हैं एनजीओ को, जो ग्रांट देते हैं डोनर भी बजट स्पेसिफाई करके देते हैं कि आपको हम ये बजट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बजट में आपको अकॉर्डिंगली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, एंड देन उस बजट पर्पस से ही आपको हमें रिपोर्ट करना है कि आपने कैसे कैसे खर्चे किए हैं, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी है एंड ऑल. तो डोनर्स को तो क्वार्टरली रिपोर्ट करना पड़ता है. यहाँ एफसीआरए और इनकम टैक्स तो चलिए हाफ ईयरली या अपना ईयरली है, बट अब कुछ डोनर्स तो अपने क्वार्टरली ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो उनके पर्पस को भी फुलफिल करना रहता है. तो क्या करें, अलग अलग टैली डेटा मेंटेन करें क्या, इनकम टैक्स के लिए अलग, एफसीआरए के लिए अलग, डोनर्स के लिए अलग. इन सब के साथ देखा जाए तो फिर सोसाइटी एक्ट भी आ जाता है कि सोसाइटी एक्ट भी बोलता है कि आपको ये शेड्यूल्स हमें सबमिट करना है, तो फिर हम देख पाएंगे कि आप कैसे काम कर रहे हैं. और बहुत सारी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज हैं. तो आज अपन ये देखेंगे कि क्या अपन एक ही टैली डेटा में ऐसे क्या फीचर्स हैं टैली में जिसके मदद से अपन एक टैली डेटा में सारी रिपोर्टिंग को फुलफिल कर सकें. तो अपन आगे बढ़ते हैं. आपको पीपीटी दिख रहा होगा? यस स्वर्णिम मैम. जी, थैंक यू जनक जी. आज क्या क्या अपन कवर करने वाले हैं टैली में? मास्टर क्रिएशन, ऑल्ट्रेशन, कॉस्ट कैटेगरी को कैसे अपन यूज करके अपनी अकाउंटिंग डिजाइन कर सकते हैं. कॉस्ट सेंटर्स हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टैली का. फिर ग्रुप क्रिएशन कैसे करेंगे, बजट क्रिएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप रिपोर्ट क्या कहती है, कैटेगरी समरी ब्रेकअप क्या कहती है, लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट क्या कहती है, एंड सो ऑन. और टैली में काफी रिपोर्ट्स हैं जिसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी. टैली में जो मेन है वो जब अपन अकाउंटिंग करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, तो लेजर हो गया, ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ये अपन कैसे देख सकते हैं. तो आप ये भी जानते हैं कि टैली प्राइम अभी अपना नया लॉन्च हुआ है. इससे पहले अपन टैली ERP 9 में काम करते थे. तो जब टैली ERP 9 में ये सारे लेजर्स, ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी एंड एक्सेट्रा, ये जितने कंटेंट अपन को देखना रहता था वो अपन कौन से ऑप्शन से देखते थे? F11 में ही अकाउंटिंग मास्टर आता था, स्टैट्यूटरी मास्टर आता था, इन्वेंट्री मास्टर आता था. आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सॉरी स्वर्णिम जी, अभिजीत जी प्लीज वीडियो बंद रखिए.
Sorry, Swarnim ji, for the interruption. Please carry on. ओके तो क्या मैं स्वर्णिम जी, एक और चीज, आपके थोड़ी ना वॉइस का इशू आ रहा है, कुछ सेटिंग्स चेंज हो चुके हैं, बहुत Okay. लो साउंड आ रही है. Yes, it अच्छा, is better now. It is better now. इट इज बेटर. ओके, Yeah. थैंक यू जनक जी. जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जब अपन को लेजर, ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी या जितने भी कंटेंट अपने टैली में है, वो अपन जब व्यू करते थे टैली ERP 9 में, तो F11 ऑप्शन है. F11 ऑप्शन से अपन उसको एनेबल करते थे. अकाउंटिंग मास्टर हो गया, स्टैच्यू मास्टर हो गया, इन्वेंट्री हो गया या पेरोल हो गया, ये सारी चीजें. बट आप जैसे ही टैली प्राइम देखेंगे तो टैली प्राइम में क्या है, अब आपको F11 की जरूरत नहीं है. अब आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही मास्टर क्रिएशन आ जाता है. मास्टर क्रिएशन में आपको वहां वो 3 ऑप्शन देता है, क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसकी हेल्प से आप जो भी अपने अकाउंटिंग मास्टर्स हैं या स्टैट्यूटरी डिटेल्स हैं, वो सब अपन एक्टिवेट कर लेते हैं. उसके लिए क्या करना रहता है, ये मैं आपको टैली पे दिखाती हूँ. ये अपना टैली प्राइम है. आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना फ्रेश है और काफी अपने जो फीचर्स हैं वो सब अपने फेस ऑफ द टैली प्राइम में ही दिख रहे हैं. जैसे अपना कंपनी क्रिएशन हो गया है, प्रिंटिंग है एंड ऑल, इंपोर्ट, कॉन्फ़िगरेशन. ये एक मैंने टैली डेटा लिया है अर्जुन फाउंडेशन का. इसके थ्रू मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगी और कैसे अकाउंटिंग स्ट्रक्चर अपन मेंटेन कर सकते हैं एनजीओ का, सो दैट अपन एक ही टैली डेटा से डिफरेंट रिपोर्टिंग कर सके, ये मैं आपको बताती हूँ. ये आप गेटवे ऑफ टैली देख सकते हैं. गेटवे ऑफ टैली में जो मास्टर क्रिएशन है, मास्टर क्रिएशन में 3 ऑप्शन है, क्रिएट, ऑल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स. जब आप क्रिएट में जाएंगे तो आपको ऐसे पॉपअप दिख जाएगा, लिस्ट ऑफ मास्टर. अभी तो आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी और बजट भी दिख रहा है, पर जब आप नई कंपनी बनाएंगे तब आपको ये ऑप्शंस नहीं एनेबल्ड होंगे, ये आपको एनेबल करने पड़ेंगे. तो आप कैसे करेंगे ये आप यहाँ पर शो मोड दिख रहा है ऑप्शन, शो मोड पे एंटर करेंगे तो आपको कुछ और ऑप्शंस दिखने लगेंगे लिस्ट ऑफ मास्टर में. बट जब आप शो इनएक्टिव करेंगे तो अभी तक जितने भी अपने टैली में ऑप्शंस हैं वो सब दिखने लगेंगे और जो चीज एनेबल्ड नहीं होगी वो आपके फ्रीज दिखेगी. जैसे कि अब अपन यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज देख लेते हैं. रेट ऑफ एक्सचेंज फ्रीज है, जैसे आप इसमें एंटर करेंगे और ये एनेबल हो जाएगा और यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं. तो ऐसे करके आपको कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, बजट, ये तीनों चीजें आपको एनेबल करनी पड़ेगी फॉर एनजीओ अकाउंटिंग. मास्टर क्रिएशन जो अपन को क्रिएट करने हैं, लेजर, ग्रुप्स, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, बजट, ये सभी अपने क्रिएट ऑप्शन से आप क्रिएट कर सकते हैं. गेटवे ऑफ टैली पे ही मास्टर में क्रिएट ऑप्शन है एंड देन अकाउंटिंग मास्टर. फिर ऑल्ट्रेशन, जो मैंने क्रिएट करे हैं कॉस्ट सेंटर्स, लेजर, ग्रुप, उसको मुझे ऑल्टर भी करना हो सकता है. तो उसके लिए क्या करना है, सेम गेटवे ऑफ टैली पे आप मास्टर पे जाएंगे. मास्टर पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है ऑल्टर का, उस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने लेजर, ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, वाउचर टाइप, बजट बनाया होगा, उसमें जो भी आपके ऑल्ट्रेशन होंगे वो आप ऑल्टर कर सकते हैं. ये तो हो गया एक वे में जाके ऑल्टर करना. बट एक थर्ड ऑप्शन भी था अपना मास्टर्स में. मास्टर में चार्ट ऑफ अकाउंट्स. चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये अपना टैली प्राइम का नया है. वैसे ERP 9 में भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स अपन देख सकते थे, बट वो फेस ऑफ दी टैली प्राइम में नहीं था, गेटवे ऑफ टैली प्राइम में नहीं था. वो अपना कहाँ पर था, वो आप जब रिपोर्ट्स में जाके स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देख सकते थे चार्ट ऑफ अकाउंट्स. बट यहाँ पर ये अपने टैली प्राइम में उनने गेटवे ऑफ टैली पे ही आपको शो करा है कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स वही देख सकते हैं कि अभी तक अपने कितने लेजर बने, कितने ग्रुप बने, कितने कॉस्ट सेंटर बने, कितने कॉस्ट कैटेगरी, वाउचर टाइप एंड एक्सेट्रा. मैं ये आपको टैली पे भी एक बार दिखाती हूँ.
क्रिएट का तो मैंने आपको बता दिया था। ऑल्टर में आप ऐसे ऑल्टर में जाएंगे और सेम आपको अगर कॉस्ट कैटेगरी में कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर नेचर वाइज, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, ये ऐसे ऑल्ट्रेशन आ जाता है विंडो, और देन आपको कुछ भी इसमें ऑल्टर करना है वो आप ऑल्टर कर सकते हैं। वैसे ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जैसे यहाँ पर आपको कुछ भी ग्रुप से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड, वाउचर टाइप से रिलेटेड, या कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर्स, जितने भी अभी तक आपने मास्टर्स बनाए हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैंने कितनी अभी तक के बनाए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं कॉस्ट सेंटर्स में जाऊं तो अभी ये मेरी लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 कॉस्ट कैटेगरी बनाया और अभी 77 कॉस्ट सेंटर्स बनाए हैं। ये सब क्या है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब आ जाते हैं अपन कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी टैली में जो ऑप्शन है उसका क्या महत्व है? कॉस्ट कैटेगरी मतलब कि एक जो कॉस्ट है, कॉस्ट को अपन कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, और ये एनजीओ में क्यों इंपॉर्टेंट है फीचर? ये एनजीओ अकाउंटिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनजीओ में एक जब कोई खर्चा होता है तो वो अपन डिफरेंट टाइप्स में अपन को देखना पड़ता है कि एरिया वाइज कितना हुआ, प्रोग्राम वाइज कितना हुआ, प्रोजेक्ट वाइज कितना हुआ, और एक इनकम टैक्स में जब अपनी आईटीआर जाती है तो अपन को एक स्टैंडर्डाइज नॉमेनक्लेचर में बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सैलरी का अगर मैं लेती हूँ कि मैंने अगर सैलरी एक्सपेंस इंकर किया है तो इनकम टैक्स में वो नॉर्मल सैलरी एक्सपेंस के थ्रू जाएगा। बट जब मैं अपने डोनर्स को रिपोर्ट करूंगी तो जो उनने मुझे बजट प्रोवाइड किया होगा उसमें उनके जो बजट लाइन आइटम्स के नाम होते हैं वो ऐसे होते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को आप इतना दे सकते हैं, या फील्ड टीम लीडर को आप इतना दे सकते हैं, रीजनल प्रोजेक्ट इंचार्ज कोई होगा तो उसको आप इतना दे सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें सैलरी से रिलेटेड है, बट जब दोनों ने हमें बजट प्रोवाइड करके रखा है तो वो जो नॉमेनक्लेचर यूज करता है वो ये यूज करता है, उनके बजट लाइन आइटम्स ऐसे रहते हैं। तो जब मैं एक खर्चा बुक करूंगी सैलरी का तो वो मुझे प्रोजेक्ट वाइज भी चाहिए होगा, नेचर वाइज भी चाहिए होगा, शायद एरिया वाइज भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि जो एनजीओ के प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने फील्ड लेवल पे होते हैं, डिफरेंट एरिया में परफॉर्म होते हैं, तो मुझे एरिया वाइज भी खर्चे चाहिए होंगे कि इस एरिया में मैंने कितना खर्चा किया है वो मुझे टैली से ही मिल जाए। तो उसके लिए मुझे कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन की मदद रहेगी। तो मैंने अपने यहाँ पर आज के टैली में प्रोजेक्ट वाइज एंड नेचर वाइज 2 कॉस्ट कैटेगरीज को डिफाइन करा है कि मुझे प्रोजेक्ट वाइज भी खर्चे की इंफॉर्मेशन चाहिए, और नेचर वाइज मतलब नेचर वाइज की जो स्टैंडर्डाइज नॉमेनक्लेचर होते हैं एक्सपेंसेस के, वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सैलरी एक्सपेंस हो गया, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, एंड सो ऑन। तो ये हो गई कॉस्ट कैटेगरी। अब कॉस्ट कैटेगरी कहाँ यूजफुल होती है अपनी? वाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। जब मैं कोई भी खर्चा बुक करूंगी टैली में थ्रू पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर, एनी वाउचर, तो वहां वो मुझसे कॉस्ट कैटेगरी पूछेगा कि प्रोजेक्ट वाइज जितनी भी कैटेगरीज मैंने बनाई होगी सारी कैटेगरीज में वो कॉस्ट सेंटर सिलेक्शन पूछेगा, और जब मैं वहाँ कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करूंगी तभी मैं कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देख पाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 1.1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ये मेरा लेजर है, उसमें मैंने 35,000 की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी। तो आप देख सकते हैं वहां पर उसने मुझसे 2 कॉस्ट कैटेगरीज पूछे, एक प्रोजेक्ट वाइज में मेरे को क्या कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है, और नेचर वाइज में सैलरी एक्सपेंस क्या सिलेक्ट करना है। मैं वहां पर दोनों में सिलेक्शंस करूंगी, फिर मेरी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स क्या है? कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरी के अंदर डिफाइंड होते हैं। ये क्यों यूजफुल है? क्योंकि कॉस्ट सेंटर से मैंने जैसे अभी बताया कि जब मैं इनकम टैक्स में आईटीआर मेरी जाएगी, एनजीओ की आईटीआर जाएगी, तो वहां मुझे स्टैंडर्ड खर्चों में बताना पड़ेगा कि प्रिंटिंग स्टेशन में कितना खर्चा हुआ, रेंट एक्सपेंस कितना हुआ, या फिक्स्ड एसेट मैंने कितने लिए। बट जब मैं डोनर्स को रिपोर्ट करूंगी तो डोनर्स मुझसे ऐसे इसमें रिपोर्टिंग नहीं मांगेगा, वो बजट वाइज मांगेगा। तो जो बजट की बीएलआईज होगी वो मेरे कॉस्ट सेंटर्स होंगे। ये सब मैं अभी आपको टैली पे भी बताऊंगी। तो अपन को कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरी के अंदर डिफाइन करना रहता है।
कॉस्ट सेंटर्स कहाँ से क्रिएट होते हैं? तो अगेन गेटवे ऑफ टैली में जो मास्टर है, मास्टर में क्रिएशन ऑप्शन है, वहां से आप कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, लेजर सब वहीं से क्रिएट होता है। अब मैं एक आपको बता देती हूँ। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कॉस्ट कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। ये देखिए, कॉस्ट कैटेगरी मेरी दो क्रिएटेड है, एक नेचर वाइज और एक प्रोजेक्ट वाइज। नेचर वाइज में जैसे मैं एंटर करूंगी तो ये पॉपअप खुल जाता है जहां से मैंने ये क्रिएट करा है। नेम मैंने नेचर वाइज रखा है। अब जो ये नेचर वाइज कॉस्ट कैटेगरी है, इसके बाद ये दो ऑप्शन पूछता है, एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स एंड एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स का मतलब ये है कि जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी अपने लेजर्स फॉल होते हैं, जब मैं उसमें खर्चे बुक करूंगी तो तब मुझे कॉस्ट कैटेगरी चाहिए। और नॉन रेवेन्यू आइटम का क्या मतलब है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि जब मेरे जैसे फिक्स एसेट हो गया या फिर मैंने कोई लाइबिलिटी के वाउचर एंटर कर रही हूँ, तब मुझे कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्शन चाहिए, तो मुझे तब यस करना है। अभी तो मैंने नो इसलिए किया है क्योंकि मेरा अभी बेसिक फोकस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट आइटम एज सच अभी अपन को नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको नो करके रखा है। वैसे ही प्रोजेक्ट वाइज भी सेम ऐसे ही बनाया है। अब मैं आपको कॉस्ट सेंटर्स बताती हूँ। वो नेचर वाइज एंड प्रोजेक्ट वाइज, आप देख सकते हैं नेचर वाइज एंड प्रोजेक्ट वाइज, ये मेरे दो कॉस्ट कैटेगरीज थे जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स डिफाइन करे हैं। अपन एक एक करके समझते हैं। नेचर वाइज में ये सारे आप देख सकते हैं कि ये मेरे स्टैंडर्ड जो नॉमेनक्लेचर होते हैं एक्सपेंस के, वो हैं जो सीएस को रिक्वायरमेंट होती है फॉर ऑडिट पर्पस, लाइक प्रिंटिंग स्टेशनरी, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑफिस एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, सैलरी एक्सपेंस, ट्रेनिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड एक्सेट्रा। अब यही मैं प्रोजेक्ट वाइज की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैं ये जितने भी नॉमेनक्लेचर है ये बिल्कुल भी अपने नोन नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि ये एक बजट है। जैसे मैं इस केस में अपनी बात करती हूँ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ये एक डोनर है। इनने एनजीओ अर्जुन फाउंडेशन को ग्रांट प्रोवाइड करी है फॉर परफॉर्मिंग सम प्रोग्राम एंड एक्टिविटी। अब उनने क्या बताया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में कि आपको, ये मैंने 4 हेड, वैसे तो 5 है क्योंकि फर्स्ट 2 अपने एडमिन से रिलेटेड है, तो ये जो 5 हेड्स है कि इसमें आपको खर्चे करने हैं। उन 5 हेड्स के अंदर भी उनने स्पेसिफिक लेजर्स डिफाइन करके रखे हैं कि जब आप प्रोग्राम से रिलेटेड खर्चा करें तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को इतना देना है, सीनियर एडिटर को इतना देना है, कैपिटल कॉस्ट में फिक्स्ड एसेट खरीदना है। अब फिक्स्ड एसेट क्यों खरीदना है? उनने मुझे उसके लिए क्यों ग्रांट दी होगी? इसलिए दी होगी क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम या एक्टिविटी एनजीओ ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें लैपटॉप, प्रिंटर या कोई फर्नीचर हो गया, उसकी जरूरत पड़ सकती है, कैमरे की जरूरत पड़ सकती है टू क्लिक फोटोज क्यों? टू जस्टिफाई कि हाँ हमने प्रोग्राम कंडक्ट करा है, ऐसे ऐसे किया है। तो ये क्या एनजीओ खुद बियर करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जब प्रोग्राम इस अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के लिए करना है तो उसके लिए भी उनको उसका बजट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उन्हें प्रोवाइड करा है। और कभी कभार वो नहीं भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो करेंगे। तो अपने केस में यहाँ पर उनने फिक्स्ड एसेट के लिए भी प्रोवाइड करके रखा है बजट, प्रोग्राम कॉस्ट में भी फर्दर। तो अब इसमें कॉस्ट सेंटर्स क्या होंगे तो मैं आपको समझाती हूँ। प्रोजेक्ट वाइज तो कॉस्ट कैटेगरी जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर अपन को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। तो क्रिएट में मैंने जैसे ही एंटर करा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में, तो ये विंडो आ गई है जिसमें नेम अपना कॉस्ट सेंटर का क्या है? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। वो किस कैटेगरी में क्लासिफाइड है? प्रोजेक्ट वाइज, अंडर प्राइमरी। अब प्राइमरी का यहाँ मतलब क्या है?
प्राइमरी का मतलब है क्या ये कॉस्ट सेंटर पेरेंट कॉस्ट सेंटर है, मतलब जब मैं कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देखूंगी तो सबसे पहले मुझे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन दिखेगा, देन फिर मेरे पास उसके अंदर जितने भी बजट है वो शो होंगे, इसलिए मैंने उसमें प्राइमरी करके रखा है कि सबसे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कॉस्ट सेंटर दिखने वाला है। देन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अपने ये 5 हेड्स हैं, अपन लेते हैं 1.1 प्रोग्राम। जैसे ही मैं 1.1 प्रोग्राम में एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं ये भी एक कॉस्ट सेंटर है, नेम इसका 1.1 प्रोग्राम कॉस्ट सेंटर है। अब ये किसके अंडर क्लासिफाइड है, पेरेंट कॉस्ट सेंटर के, जो कि अपन ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन रखा था। फिर फर्दर जब मैं 1.1 प्रोग्राम में एंटर करूंगी तो मेरे ये 3 सब कॉस्ट सेंटर्स दिख जाएंगे। 1.1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसमें मैं एंटर करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये नाम है 1.1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वो किसके अंडर क्लासिफाइड है, 1.1 प्रोग्राम के। वैसे ही 1.1.2 सीनियर एडिटर, वो भी किसके अंडर क्लासिफाइड है, 1.1 प्रोग्राम के, एंड सो ऑन। वैसे ही मैंने बाकी के भी, जैसे कैपिटल कॉस्ट भी किसमें है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अजीम प्रेमजी इज नॉट पेरेंट कॉस्ट सेंटर, देन सब कॉस्ट सेंटर्स आएंगे। ये तो एक हो गया अपने फाउंडेशन, एक डोनर हो गया। मैंने दूसरा डोनर भी यहाँ पर आपको बताया है, ये लिब्रा फाउंडेशन। लिब्रा फाउंडेशन ने अपने 2 बजट लाइन आइटम्स दिए हैं, ए सपोर्ट कॉस्ट एंड बी प्रोग्राम कॉस्ट। ए सपोर्ट कॉस्ट में फिर सब उनने अपन को डिफाइन करे गए हैं खर्चे की, कि सपोर्ट कॉस्ट में आपको कौन कौन से खर्चे इंकर कर सकते हैं, सैलरी एंड बेनिफिट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैवल एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ऑडिट, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग। तो अपन देखते हैं लिब्रा फाउंडेशन क्या है। अगेन इट इज क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी बिकॉज इट्स अ पेरेंट कॉस्ट सेंटर। देन ए सपोर्ट कॉस्ट में मैं जैसे एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं विच इज क्लासिफाइड अंडर लिब्रा फाउंडेशन, इट इज सब कॉस्ट सेंटर। ए सपोर्ट कॉस्ट इज माय सब कॉस्ट सेंटर एंड A.1 सैलरी एंड बेनिफिट इज माय सब कॉस्ट सेंटर। वैसे ही मैंने बाकी के लिब्रा फाउंडेशन की BLIs को डिफाइन करा है। अब जरूरी नहीं है कि एक डोनर ने जब अपन को ग्रांट दिया है तो वो एक ही प्रोजेक्ट अपन से कंडक्ट करवाए, हो सकता है इसके 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो इन दैट केस अपना स्ट्रक्चर कैसे होगा, इन दैट केस मैं ये चाहूंगी कि मैं डोनर है, डोनर के बाद मुझे प्रोजेक्ट वाइज दिखे कि मैंने प्रोजेक्ट वाइज कितना खर्चा किया है, और प्रोजेक्ट वाइज के अंदर जब मैं देखूं कि एक प्रोजेक्ट में मेरे बजट लाइन आइटम्स कितने हैं और उसमें मैंने कैसे कैसे खर्चा किया है, मैं वैसे रिपोर्टिंग चाहूंगी। क्योंकि जब मुझे उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा तो मुझे उसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में उसने मुझे बजट प्रोवाइड करा है। तो आप देख सकते हैं प्रतीका फाउंडेशन के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक एजुकेट सोसाइटी और एक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये 2 चल रहे हैं। तो अब इसमें पेरेंट कॉस्ट सेंटर, सब कॉस्ट सेंटर, सब कॉस्ट सेंटर क्या होगा देखते हैं अपन। प्रतीका फाउंडेशन अगेन मैंने इसको प्राइमरी रखा है, मतलब प्रतीका फाउंडेशन इज माय पेरेंट कॉस्ट सेंटर। देन एजुकेट सोसाइटी पे जाएंगे तो विच इज क्लासिफाइड अंडर प्रतीका फाउंडेशन। एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं लाइवलीहुड प्रोजेक्ट किसके अंडर क्लासिफाइड है, प्रतीका फाउंडेशन में। तो मतलब जब मैं प्रतीका फाउंडेशन में क्लिक करूंगी तो मेरे को सिर्फ 2 कॉस्ट सेंटर्स दिखेंगे, एक एजुकेट सोसाइटी एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। देन जब मुझे फर्दर देखना होगा कि एजुकेट सोसाइटी के अंदर कि मेरे बजट लाइन आइटम्स कितने हैं और उसमें मैंने कैसे कैसे खर्चा किया है, तो मुझे उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो एजुकेट सोसाइटी के अंदर फिर है पर्सन पावर, इस पे मैंने एंटर करा है तो आप देख सकते हैं नाम मैंने रखा है ES1 पर्सन पावर, क्योंकि जब प्रतीका फाउंडेशन ने मुझे बजट प्रोवाइड किया था तो उनका बजट फॉर्मेट सेम है, मतलब पर्सन पावर, देन फिर प्रोग्राम कॉस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टू सेग्रीगेट कि एजुकेट सोसाइटी के खर्चे कौन से हैं, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के कौन से हैं, इसलिए मैंने ES1 पर्सन पावर रखा है विच इज क्लासिफाइड अंडर एजुकेट सोसाइटी। देन पर्सन पावर के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है रीजनल प्रोजेक्ट इंचार्ज, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रेरक, एडमिन एंड अकाउंट सपोर्ट।
तो जब मैं रीजनल प्रोजेक्ट इंचार्ज के में एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं वो पर्सन पावर के अंडर क्लासिफाइड है। वैसे ही मैंने बाकी के भी क्लासिफाई करके रखे हैं और लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ऐसे मैंने 77 कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करके रखे हैं। अब मैं एक बार आपको रिपोर्ट भी बता देती हूँ कि ये कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट कैसे दिख रही है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे आप गेट पे और टैली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एंटर करेंगे, देन आपके पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आप जैसे एंटर करेंगे तो कॉस्ट सेंटर आएगा। कॉस्ट सेंटर में आप जैसे एंटर करेंगे तो कैटेगरी समरी आएगा। जो अपन ने कैटेगरी बनाई थी उस बेसिस पे अगर आपको रिपोर्टिंग चाहिए तो कैटेगरी समरी है, और जो अपन ने अभी छोटे छोटे कॉस्ट सेंटर्स बनाए, अगर उस वे में आपको रिपोर्ट चाहिए तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है। तो अब मैं आपको कैटेगरी समरी में बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि देखिए ये ऐसे अपन को रिपोर्ट दिख जाएगी। नेचर वाइज में बैंक चार्जेस में कितना हुआ, अब ये देख सकते हैं। देखिए अभी तक के जो टोटल खर्चा मैंने किया है, टोटल खर्चा मैंने कितना किया है 49,69,111। 49,69,111 को टैली ने नेचर वाइज भी अपन को बताया और प्रोजेक्ट वाइज भी बताया कि मतलब एक ही खर्चे को मैं नेचर वाइज भी देख सकती हूँ और प्रोजेक्ट वाइज भी देख सकती हूँ। अब ये नेचर वाइज में आप देख सकते हैं ये मेरे पूरे स्टैंडर्ड खर्चे हैं। ये मेरे को कहाँ हेल्प मिलेगी, while filing my income tax return or presenting my accounts to CA, and project wise कहाँ मुझे मिलेगी हेल्प, to provide my utilization certificate to donors। तो अब मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जैसे शिफ्ट एंटर करूंगी तो आप देखिए मेरी ये BLI जो अपना पेरेंट कॉस्ट सेंटर था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, देन सब कॉस्ट सेंटर 1.1 प्रोग्राम। अगर मुझे ऐसे ग्रुप वाइज देखना है तो आप ये देख सकते हैं 1.1 प्रोग्राम में मैंने कितना खर्चा किया है 6,78,000। बट मुझे इसके अंदर फर्दर सब कॉस्ट सेंटर वाइज देखना है तो मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कितने हैं, एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और एक सीनियर एडिटर है। वैसे ही यहाँ पर 1.2 एडमिन में मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोफेशनल फी, एडमिन एंड अकाउंट सपोर्ट। कैपिटल कॉस्ट में मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो ये मेरा आ जाएंगे दो मेरे पास सब कॉस्ट सेंटर्स थे, इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर एंड एसेसरीज, फर्नीचर एंड फर्निशिंग। फिर उसके बाद है प्रोग्राम कॉस्ट में मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं ट्रैवल, रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड स्टेशनरी एंड ओवरहेड कॉस्ट में फर्दर जो सब कॉस्ट सेंटर्स थे वो रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर। ये पूरी रिपोर्टिंग मेरी कौन सी हो गई, जो मुझे प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया था। तो मैं ऐसे में अपने डोनर्स को भी रिपोर्ट कर सकती हूँ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। वैसे लिब्रा फाउंडेशन आप देख सकते हैं, लिब्रा फाउंडेशन में ए सपोर्ट कॉस्ट था और प्रोग्राम कॉस्ट था। सपोर्ट कॉस्ट सेंटर में मैं जैसे ही फर्दर शिफ्ट एंटर करूंगी तो सैलरी एंड बेनिफिट के खर्चे दिख जाएंगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिख जाएगा और ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस दिख जाएंगे, ऑडिट, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग के। ये चार खर्चे मुझे दिख जाएंगे सपोर्ट कॉस्ट में। वैसे ही प्रोग्राम कॉस्ट में भी दिख जाएंगे। तो अब मैं लिब्रा फाउंडेशन को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती हूँ। वैसे ही प्रतीका फाउंडेशन में आप देखिए मेरे दो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रतीका में मैं टोटल खर्चा देखना चाहूँ कि मैंने कितना कर दिया है, तो मैंने कितना किया है 28,81,167। और उसमें मैं अगर प्रोजेक्ट वाइज देखूं कि मैंने कितने प्रोजेक्ट वाइज करे हैं तो उसमें से 17,16,820 मेरा एजुकेट सोसाइटी में हुआ है। लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में मेरा 11,64,347। तो इससे मेरे को क्या हेल्प मिलेगी, इससे मैं दो प्रोजेक्ट के खर्चों को कंपेयर भी कर पाऊंगी कि एक ही डोनर ने जब मुझे ग्रांट प्रोवाइड करी है दो प्रोजेक्ट्स के लिए तो मैंने अभी तक कितना कितना कर लिया है। देन एजुकेट सोसाइटी में फर्दर शिफ्ट एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं इसमें भी कॉस्ट सेंटर वाइज मेरी रिपोर्ट आ जाएगी कि पर्सन पावर में मैंने अभी तक कितना खर्चा कर लिया, प्रोग्राम कॉस्ट में कैपिटल कॉस्ट हो गया, ओवरहेड कॉस्ट हो गया। एंड पर्सन पावर में जब मैं फर्दर क्लास एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं उसके अंदर भी जो उनने बजट लाइन आइटम्स प्रोवाइड किए थे डोनर्स ने वो भी मुझे दिख जाएंगे। रीजनल प्रोजेक्ट इंचार्ज में 321,500 हो गया है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में 227,000 हो चुका है एंड सो ऑन। तो ये ऐसे अपनी रिपोर्ट दिखेगी।
अब मैं आपको कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज भी दिखा देती हूँ। जैसे कॉस्ट सेंटर्स अभी अपन ने इतने 77 कॉस्ट सेंटर्स बनाए थे, उसमें से एक मैंने प्रोजेक्ट का नाम भी बनाया था, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अब मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ वो क्लिक करूंगी नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर में, तो ये आ गया मेरा कॉस्ट सेंटर। अब आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से रिलेटेड अभी तक के मैंने जो खर्चे करे, एक ये छोटा सा ट्रायल बैलेंस भी आ गया कि फिक्स एसेट में मैंने अभी तक कितना खर्चा करा है, इनकम मैंने कितनी अभी तक रिकॉर्ड करी है, इनकम में क्या होगा, इनकम में जो मैंने खर्चे करे हैं उतना ही मुझे ग्रांट इनकम में ट्रांसफर करना रहता है, जो कि अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप देख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी अपना ग्रुप वाइज हो गया। ग्रुप के अंदर जो फर्दर उनने अपन को बजट प्रोवाइड करा है लाइन आइटम वाइज, वो भी अपने पास यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। बस, तो अपन को क्वार्टरली कुछ नहीं करना, बस इसको एक्सपोर्ट करना है और डोनर को प्रोवाइड करना है। ये हो गया अपना कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी मदद से। अब ये तो मैंने आपको रिपोर्ट बता दिए। अब अपन आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या इसी के मदद से अपनी अभी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी से। अभी तो टैली में जो अपन मेन खर्चा जिस लेजर के थ्रू या ग्रुप के थ्रू बुक करते हैं, वो तो अभी तक क्रिएट ही नहीं किया अपन ने। अभी तो सिर्फ अपन ने रिपोर्ट जनरेशन के लिए क्या ऑप्शन यूज करना है ये चेक करा। अभी अपन एक्सपेंस कैसे बुक करेंगे? एक्सपेंस विदाउट क्रिएटिंग लेजर्स तो हो ही नहीं सकता। कॉस्ट सेंटर तो बाद में आएगा। तो अब अपन देखते हैं कि ग्रुप क्रिएशन क्या होता है और लेजर क्रिएशन क्या होता है। तो ग्रुप क्रिएशन क्या है? ग्रुप क्रिएशन अपना कहाँ से होगा? ये अपना सेम गेटवे ऑफ टैली पे जनक जी किसी ने रेज हैंड किया है, तो क्या अभी Yes. अपन को लेना चाहिए या फिर अपन एंड में लें? जैसा आपको ठीक लगे मैम, आप बताएं। एक बार मैं पूरा अपना कंप्लीट कर लूं, सो दैट क्या होगा, अगर किसी को डाउट है भी तो अपन एंड में ले, शायद उनका ड्यूरिंग दी सेशन वो डाउट क्लियर भी हो जाए। श्योर मैम। नंदाल जी, आपका हैंड रेस हमने देखा है। once we are done with the session, we will take your Q&A if something is not really urgent. Yes, Swarnim ji, please continue. I'll. Okay, thank you, Jamal ji. Yeah. ग्रुप क्रिएशन सेम अपना गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर के थ्रू जहां अपन ने क्रिएट देखा था ऑप्शन, वहां से अपन ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। जब अपन ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ऐसे विंडो आ जाती है जो आप नीचे यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में। वो नाम पूछेगा कि ग्रुप का नाम क्या रखना है, किसके अंडर क्लासिफाई करना है, और फिर उसके सिलेक्शन। अब मैं आपको एक बार टैली पे और दिखा देती हूँ। ये है अपना क्रिएट में जाके अपन ग्रुप पे जाएंगे, वही सेम अपना पॉपअप आ जाता है विंडो, और फिर आपको नेम डिफाइन करना है, अंडर किसके डिफाइन करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर अपना कोई बैलेंस शीट आइटम है जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ दिख रहा है या फिक्स एसेट है, वो सारी चीजें अपन यहाँ सिलेक्शन करेंगे। अब जो मैंने अभी ग्रुप क्रिएट करे हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट से अपन ने अभी देखा ही कि कैसे अपन सारे जितने भी अभी तक मास्टर क्रिएटेड है वो अपन को लिस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट से मिल जाएगी। तो ग्रुप में मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप यहाँ देख सकते हैं 48 ग्रुप्स क्रिएटेड है, बट ये सारे के सारे मैंने क्रिएट करके नहीं रखे हैं। ये बाय डिफॉल्ट टैली में भी काफी ग्रुप्स हैं जो क्रिएटेड होते हैं, जैसे ब्रांच डिवीजन है, कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व एंड सरप्लस है। इसमें से मैंने क्या क्रिएट करे मैं आपको वो बताती हूँ, और कैसे क्रिएट करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। अपन सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे मैंने अभी आपको कॉस्ट सेंटर समझाए थे कि कॉस्ट सेंटर प्रोजेक्ट वाइज में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, फिर उसके अंडर 1.1 प्रोग्राम था, 1.2 एडमिन था, 3 प्रोग्राम कॉस्ट था और 4 ओवरहेड्स था। जैसे मैंने वहां स्ट्रक्चर दिया था कॉस्ट सेंटर में, वैसे के वैसे ही मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी स्ट्रक्चर दूंगी। और क्यों दूंगी मैं ऐसे? मुझे तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड
नॉमेनक्लेचर यूज होता है उस हिसाब से बुक करना चाहिए, जैसे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में यूज होता है कि यहाँ सैलरी एक्सपेंस होता है, रेंट एक्सपेंस होता है अपना, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है। तो एनजीओ में ये इसलिए मैंने नहीं रखा, इन सारे स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने नेचर वाइज एक कॉस्ट कैटेगरी डिफाइन कर दिया था कि अपन को अगर उस वे में भी खर्चे चाहिए तो मैं नेचर वाइज देख सकती हूँ। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंशन मैंने इसलिए रखा है बिकॉज जब मेरा लेजर में कोई भी एंट्री करूंगी तो जब मैं कॉस्ट सेंटर सिलेक्शन करूं तो मुझे वहां कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो कॉस्ट सेंटर का नाम है वो ही मैंने ग्रुप का और लेजर का नाम रखा है कि कोई भी अकाउंटेंट है या जो भी कोई अकाउंटिंग कर रहा हो उसको कॉस्ट सेंटर सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना जाए, वो वहां गलती कर ही ना पाए। बट उसके बाद भी गलती होने के चांसेस तो हमेशा रहते ही हैं, उसका भी अपन देखेंगे कि कैसे उस गलती को अपन पकड़ सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो अभी अपन देखते हैं कि सबसे पहले मैंने ग्रुप क्या क्रिएट करा है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पे जैसे मैंने एंटर करा तो यहाँ नाम में मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन डाल दिया। अंडर किसके क्लासिफाई करा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर पे जाऊंगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखूंगी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे सबसे पहले मुझे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन दिखेगा, वैसे ही लिब्रा फाउंडेशन दिखेगा और प्रतीका फाउंडेशन दिखेगा। फिर उसके अंदर के खर्चे जो भी मैं देखना चाहूँ मैं वैसे वैसे उस पर एंटर करती जाऊंगी। अब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अंडर मैंने 1.1 प्रोग्राम ग्रुप को क्रिएट करा है। इसको मैं लेजर क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लेजर वो होता है जिसमें अल्टीमेटली अपन खर्चा बुक करते हैं। अभी 1.1 प्रोग्राम के में अल्टीमेटली मैं खर्चा नहीं बुक करूंगी, मैं इसके अंडर जो 1.1.1 प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डिफाइंड है बीएलआई, उस पे जब मैं एंट्री करूंगी पेमेंट वाउचर के थ्रू या जर्नल वाउचर के थ्रू, तब मेरे पास जो सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा वो ग्रुप नहीं आता, वो आता है लेजर। तो इसलिए मैंने 1.1 प्रोग्राम को ग्रुप डिफाइन करा है। आप देख सकते हैं कि नाम है 1.1 प्रोग्राम और वो किसके अंडर क्लासिफाइड है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन किसके अंडर डिफाइंड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे ही 1.2 एडमिन है। 1.2 एडमिन में आप देख सकते हैं नाम 1.2 एडमिन और किसके अंदर क्लासिफाइड है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ये सारे ग्रुप हैं। वैसे ही मैंने दूसरा जो डोनर का प्रोजेक्ट है लिब्रा फाउंडेशन, उसको रखा है, वो भी एक ग्रुप में ही है। ग्रुप लिब्रा फाउंडेशन किसके अंदर क्लासिफाइड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सपोर्ट कॉस्ट के साथ भी ऐसा ही है, ए सपोर्ट कॉस्ट अपना लिब्रा फाउंडेशन के अंदर क्लासिफाइड है, प्रोग्राम कॉस्ट भी लिब्रा फाउंडेशन के अंडर क्लासिफाइड है। एंड प्रतीका फाउंडेशन के केस में क्या है, प्रतीका फाउंडेशन के केस में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो प्रतीका फाउंडेशन को मैंने ग्रुप बनाया है जो कि ये पेरेंट ग्रुप है। देन एजुकेट सोसाइटी में एंटर करूंगी तो ये अपना प्रतीका फाउंडेशन में जो कि ये सब ग्रुप होगा, एजुकेट सोसाइटी विल बी माय सब ग्रुप। सेम इन केस ऑफ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, it is also my subgroup, and under my subgroup there are subgroup which is person power, ES1 person power. ठीक है, ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लासिफाइड हो गए। बट यहाँ पर मैंने जब आपको बताया था कॉस्ट सेंटर में, तो जब डोनर ने मुझे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में बजट प्रोवाइड किया था तो यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट भी था। कैपिटल कॉस्ट मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं क्लासिफाई किया, वो मैंने फिक्स एसेट में क्लासिफाई किया है। क्यों किया है फिक्स एसेट में, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट जो मेरे फिक्स एसेट है वो मेरा कभी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। वो तभी हो सकता है जब डोनर ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो आप पूरा का पूरा खर्चा मान लो। वैसे टेक्निकली वो अपन खर्चा नहीं मानते, वो पहले अपन फिक्स एसेट क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इस वजह से जो भी मैंने कैपिटल कॉस्ट इनकर किया है इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, कैमरा एक्सेट्रा, देन वो मेरे कहाँ पर क्लासिफाइड होंगे, फिक्स एसेट में क्लासिफाइड होंगे। आप देख सकते हैं फिक्स एसेट में मैंने 3 कैपिटल कॉस्ट क्रिएट करे हैं। बीएलआई मैंने सेम रखी है जो मेरे फंडर की है। 2 कैपिटल कॉस्ट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, 3
कैपिटल कॉस्ट, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी मैंने सेग्रीगेट करके रखा है कि फिक्स्ड एसेट पे भी मुझे पता चले कि कौन सा मेरा किस डोनर से रिलेटेड है, कौन सा फिक्स्ड एसेट मेरा किस डोनर से रिलेटेड है। इसलिए मैंने ग्रुप का नाम ही कैपिटल कॉस्ट एंड फिर फंडर का नाम ये रखा है। तो ये तो हो गई मेरे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स भी बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कितने लेजर्स अपने हैं? 54 लेजर्स ओपन है। 54 भी मैंने नहीं ओपन करे हैं, ये बाय डिफॉल्ट टैली में जो ओपन रहते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, कैश है, डिपॉजिट्स हैं, ये सारे टैली में। मैंने जो आप ओपन करे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको इनकम में लाऊंगी। इनकम में मैंने कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करे हैं, देन अपनी लाइबिलिटी में कौन से क्रिएट होंगे एंड फिक्स्ड एसेट पे कौन से होंगे, ये अपन ऐसे जाएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप देख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अपन ने अभी देखा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मेरा ग्रुप है। फिर उसके अंदर सब ग्रुप क्या था? 1.1 प्रोग्राम। अब मेरे लेजर्स की बारी आती है। लेजर्स 1.1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो कहाँ पर क्लासिफाइड है? 1.1 प्रोग्राम। तो यहाँ लेजर में मैं एंटर करती हूँ, ये क्रिएट कहाँ से होगा? क्रिएट सेम अपना मास्टर गेटवे ऑफ टैली में मास्टर में क्रिएट, आप जितने भी लेजर्स है वहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैं एंटर करूंगी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में तो ये विंडो दिखती है। विंडो में पहले नाम आएगा कि लेजर का नाम क्या होगा। तो सेम जो मैंने BLI है, जैसे मेरे फंडर ने मुझे प्रोजेक्ट प्रोवाइड करा है उस वे में ही मैं अपने लेजर्स, ग्रुप एंड कॉस्ट सेंटर्स के नाम रखूंगी। तो यहाँ पर 1.1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मेरा लेजर है जो कि किस ग्रुप के अंडर क्लासिफाइड है? 1.1 प्रोग्राम। आप जैसे ही यहाँ पर 1.1 प्रोग्राम में कंट्रोल एंटर करते हैं तो आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि 1.1 प्रोग्राम इज माय ग्रुप एंड विच इज क्लासिफाइड अंडर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन विच इज अगेन अ ग्रुप। आप अजीम प्रेमजी में जैसे ही कंट्रोल एंटर करते हैं तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आपको जब लेजर का नाम अपन ने दे दिया, अंडर किस ग्रुप में क्लासिफाई करना है ये भी दे दिया, उसके बाद ये बाकी की जो डिटेलिंग है वो आती है, वो भी आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन क्लिक कर देंगे। वैसे ही 1.1.2 सीनियर एडिटर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नाम है 1.1.2 सीनियर एडिटर, जिस किस ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड है? 1.1 प्रोग्राम में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी कॉस्ट सेंटर की इंफॉर्मेशन अभी तक पूछी नहीं है। तो ERP9 में जब अपन लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्रिएशन वाली विंडो पे ही सारी इंफॉर्मेशन वो बता देता है कि इसमें आपको बैंक डिटेल क्या डालनी है, GST है तो GST एप्लीकेबल करना है, TDS की डिटेल डालनी है, कॉस्ट सेंटर की डालनी है। बट टैली प्राइम में एक ये नया है कि उनने ये जो भी अननेसेसरी फीचर्स है जो मतलब हर बार नहीं काम आते कोई भी लेजर क्रिएशन में, उसको उनने कहा प्लेस करा है मोर डिटेल्स में। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं मोर डिटेल्स है। मोर डिटेल्स में ये सारे आपको लिस्ट ऑफ लेजर डिटेल्स मिल जाएगी जो कि पहले ERP9 में विंडो पे ही दिखती थी, या अपन को उसमें F12 करके एक्टिवेट करना पड़ता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी मैंने येस करके रखा है, तो आपको भी यहाँ से येस करना है। इसके अलावा भी जैसे GST TDS के फीचर्स हैं जो आपको इस लेजर में डिफाइन करने हैं, वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। डिटेल्स कैसे डालेंगे? शो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी, देन शो इनएक्टिव करेंगे तो और फर्दर आ जाएगी। इसमें आप जो भी आपको डिफाइन करना है इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी डिटेल्स है या पेरोल है एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द लेजर। तो ये टैली प्राइम ने एक अच्छा किया है कि बिकॉज ERP9 में जब अपन को लेजर क्रिएशन करना था तो अननेसेसरी हर चीज के ऑप्शन को येस नो येस नो येस नो करके फिर जाके एक लेजर क्रिएट होता था। बट इनने यहाँ पर ये हेल्प हो गया कि एक जगह पर कर दिया, इफ यू रिक्वायर्ड देन क्लिक ऑन मोर डिटेल्स एंड देन पुट द डिटेल, अदरवाइज द बेसिक इंफॉर्मेशन इज हियर। देन 1.13 डिजाइनर आप देखेंगे, ये भी एक लेजर ही है जो कि फर्दर 1.1 प्रोग्राम ग्रुप में ही क्लासिफाइड है। आपको सब में कॉस्ट सेंटर यस करना पड़ेगा।
जब तक आप लेजर में कॉस्ट सेंटर यस नहीं करेंगे, तब तक जब मैं एंट्री करूंगी तब तक आप वहां पर कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट ही नहीं कर पाए तो फिर अपनी वो जो रिपोर्टिंग पर्पस है वो सब डिफीट हो जाता है। आप आगे भी देख सकते हैं कि प्रोग्राम कॉस्ट के अंदर भी मैंने ऐसे ही किया है 3.1 ट्रैवल विच इज अगेन लेजर एंड इट इज क्लासिफाइड अंडर 3 प्रोग्राम कॉस्ट। जो अपना सेकेंड प्रोजेक्ट है लिब्रा फाउंडेशन, उसमें भी अभी ये लिब्रा फाउंडेशन अपना ग्रुप है, देख सकते हैं आप ग्रुप ऊपर नाम आ गया है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्लासिफाइड है। फिर ए सपोर्ट कॉस्ट है, सपोर्ट कॉस्ट अगेन इट्स अ ग्रुप एंड इट इज क्लासिफाइड अंडर लिब्रा फाउंडेशन जो अपन ने लिस्ट ऑफ लेजर में देखा है। अब आते हैं लेजर जो कि है 1.1 सैलरी एंड बेनिफिट। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैं आपको कॉस्ट सेंटर में भी समझा चुकी हूँ। तो जो कॉस्ट सेंटर का स्ट्रक्चर है वो ही अपना लेजर का स्ट्रक्चर भी होगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ए सपोर्ट कॉस्ट, ग्रुप में क्लासिफाइड है ये। प्रतीका फाउंडेशन भी एक बार अपन देख लेते हैं क्योंकि इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं तो उसकी कैसे लेजर्स हैं अपने। ये आप देख सकते हैं ES 1.1 रीजनल प्रोजेक्ट इंचार्ज, ये भी अपना लेजर है जो कि ES 1 पर्सन पावर में क्लासिफाइड है। ये तो हो गए अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए लेजर्स। अब मैं आपको बताती हूँ फिक्स्ड एसेट। जितने भी अपने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बजट लाइन आइटम्स हैं, बजट प्रोवाइड करा गया है, वो उसको मैंने फिक्स्ड एसेट में ही क्लासिफाई किया। जैसे कि अपना अजीम प्रेम जी में 2 फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बजट प्रोवाइड किया गया था, तो कंप्यूटर प्रिंटर एंड फर्नीचर वो फिक्स्ड एसेट में क्लासिफाइड है, ये लेजर्स कैपिटल कॉस्ट ग्रुप के अंडर। वैसे 3.1 प्रोग्राम इक्विपमेंट लैपटॉप, ये अपना कैपिटल कॉस्ट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये भी मैंने फिक्स्ड एसेट में क्लासिफाई करा हुआ है। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहता है उसके हिसाब से 3.1 प्रोफेशनल इक्विपमेंट लैपटॉप, ये भी अपना फिक्स्ड एसेट में क्लासिफाइड हो गया है। तो अपन ने अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस देख लिया, फिक्स्ड एसेट भी देख लिया कि अपन कैसे फिक्स्ड एसेट में क्या क्या चीजें अपन को क्लासिफाई करके रखना है। अब अपन आते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में भी अपन को कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। अपन क्या क्रिएट करेंगे? ग्रांट। जो अपन को ग्रांट मिलेगा, अगर वो रेवेन्यू ग्रांट है तो फिर तो वो डायरेक्ट अपना इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। बट अगर वो स्पेसिफिक ग्रांट है जो कि वो होगा तभी तो बजट वगैरह की बात आएगी, तो फिर अपन को सबसे पहले उसको लाइबिलिटी बताना पड़ेगा, क्योंकि वो आज के टाइम पे तो मेरी लाइबिलिटी है, बट जैसे जैसे मैं खर्चा करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं उसको इनकम में ट्रांसफर करती जाऊंगी। तो मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से रिलेटेड लेजर बनाया, ग्रांट फ्रॉम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ग्रांट रिसीट फ्रॉम लिब्रा फाउंडेशन, ग्रांट रिसीट फ्रॉम प्रतीका फाउंडेशन एंड ग्रांट रिसीट फ्रॉम प्रतीका फाउंडेशन फॉर लाइवलीहुड एंड एजुकेट सोसाइटी। ये दोनों के लिए अलग मैंने लेजर्स क्रिएट करे। तो ये तो हो गए मेरे लाइबिलिटी के लेजर्स। एक लेजर अपन को इनकम में के लिए भी करना है, ग्रांट यूटिलाइज्ड। जब जब मैं यूटिलाइजेशन करती जाऊंगी, जब जब मैं एक्सपेंसेस इंकर करती जाऊंगी इन रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट, तो मुझे उससे रिलेटेड ग्रांट यूटिलाइज भी बुक करना पड़ेगा कि मैंने इतना इतना ग्रांट यूटिलाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेंडिचर। तो ये तो हो गए लिस्ट ऑफ लेजर्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट से जाके लिस्ट ऑफ लेजर्स मैं आपको बताया है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। ग्रुप क्रिएशन हो चुका है अपना। अब अपन बजट में आते हैं। एनजीओ के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज उनको जो भी ग्रांट रिसीव होती है उसके लिए स्पेसिफिक बजट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि किस किस बीएलआई में, बजट लाइन आइटम में आपको कैसे कैसे खर्चा करना है। ये सब पहले से डोनर उनको बता दिया जाता है, जिसके अगेंस्ट में वो उनसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं एनजीओ से। वो क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट। तो अब बजट अपन टैली
में कैसे एंटर करेंगे ये अपन देखते हैं। सेम अपन को गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट मास्टर क्रिएशन में क्रिएट में जाना है एंड देन बजट का ऑप्शन आता है। तो आप जैसे ही वहाँ बजट पे क्लिक करेंगे तो एक राइट हैंड साइड पे जैसे आपको विंडो दिख रही है वैसे दिखेगी, जिसमें वो नाम पूछता है कि क्या है बजट का नाम, आपको कहाँ क्लासिफाई करना है, क्या वो एज एन प्राइमरी क्लासिफाई करना है या किसी के अंडर क्लासिफाई करना है, पीरियड ऑफ द बजट क्या रहेगा, और अपन को बजट अमाउंट डालना है। तो टैली में अपने 3 सेट्स में बजट डालते हैं, एक ग्रुप वाइज डालते हैं, एक लेजर वाइज डालते हैं और कॉस्ट सेंटर वाइज डालते हैं। जैसा कि अपन ने देखा था कि ग्रुप क्या होता है टैली में, लेजर क्या होता है और कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो अपन को ये तीनों सेट्स में अपने बजट डालने हैं तो जाके एक बजट कंप्लीट होता है। आइए अपन देखते हैं टैली पे कि कैसे वो शो होगा। ये मैंने 4 बजट डाले हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, एजुकेट सोसाइटी, लिब्रा फाउंडेशन एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अपन देखते हैं तो अंडर किससे क्लासिफाइड है, प्राइमरी, पीरियड अप्रैल 20 से मार्च 21। ग्रुप में आप जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप ये विंडो आ जाएगी जिसमें वो ग्रुप नेम पूछेगा, कॉस्ट सेंटर, टाइप ऑफ बजट क्या है, मतलब आपको जब बजट कंपैरिजन करेंगे तो कैसे ऑन क्लोजिंग बैलेंस करना है या फिर ऑन नेट ट्रांजैक्शन करना है, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। देन बजट अमाउंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अपने 5 जो ग्रुप्स थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बजट अमाउंट डाल दिए हैं और ऑन क्लोजिंग बैलेंस मैंने सिलेक्ट करा है। लेजर्स में अपन देख सकते हैं जो अभी अपन ने लेजर्स क्रिएट करे थे जो कि ग्रुप के अंदर अल्टीमेटली क्लासिफाइड थे 1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, 1.1.2 सीनियर एडिटर, 1.1.3 डिजाइनर टेक्निकल एंड फर्दर सेम। तो जो लेजर्स थे उसके मैंने यहाँ पर बजट अमाउंट डिफाइन कर दिए हैं। फिर अपन कॉस्ट सेंटर्स देख लेते हैं। कॉस्ट सेंटर में भी सेम जो मैंने लेजर्स थे वही मेरे कॉस्ट सेंटर्स थे, तो कॉस्ट सेंटर वाइज भी मैंने यहाँ बजट क्लासिफाई कर दिया है। तो इसमें क्या है, ये क्लासिफाई करने से अपना जब बजट वेरिएंस अपन रिपोर्ट देखेंगे तो वो ग्रुप वाइज भी आपको बताएगा, लेजर वाइज भी बताएगा और कॉस्ट सेंटर वाइज भी बताएगा। जैसे ही एजुकेट सोसाइटी देख लेते हैं। एजुकेट सोसाइटी में भी सेम ग्रुप वाइज बजट डाला है, पर्सन पावर, प्रोग्राम कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। फिर लेजर वाइज बजट प्रोवाइड करा है, रीजनल प्रोजेक्ट इंचार्ज, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रेरक, फील्ड टीम एंड सो ऑन। वैसे ही कॉस्ट सेंटर भी सेम जो लेजर्स थे वैसे ही कॉस्ट सेंटर्स के नाम है, तो उस हिसाब से अपन ने बजट प्रोवाइड कर दिया है। वैसे ही लिब्रा फाउंडेशन और लाइवलीहुड का भी वैसे ही क्रिएट करा है। क्रिएशन ऑफ बजट में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे वो दिखेगा विंडो, कैसे लेजर वाइज रिपोर्ट, लेजर वाइज अपन को कैसे फीड करना है, कॉस्ट सेंटर वाइज कैसे करना है। अब कॉस्ट कैटेगरी समरी रिपोर्ट में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे ये सब आप एंट्री करेंगे तो कैसे अपन को शो होगा। अब अपन एक एंट्री पे भी जाके देखते हैं। अपन ने अभी तक कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लिए है, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिए, ग्रुप्स क्रिएट करे, लेजर क्रिएट किए, बजट क्रिएट कर लिए। अब अपन एक बार जाते हैं और देखते हैं अपना कैसा दिख रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे मैं क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज पहले मुझे दिख रहा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, टोटल अभी तक कितने बुक हो गए हैं, लिब्रा फाउंडेशन, प्रतीका फाउंडेशन। अब अपन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जैसे एंटर करते हैं तो अगेन ग्रुप वाइज मुझे खर्चे दिख जाएंगे। 1.1 प्रोग्राम, 1.2 एडमिन, 3 प्रोग्राम कॉस्ट, 4 ओवरहेड कॉस्ट, 2 कहाँ गया, 2 था कैपिटल कॉस्ट जो कि मेरे फिक्स एसेट में क्लासिफाइड है।
आप 1.1 प्रोग्राम में मैंने फर्दर एंटर करा है, आप देख सकते हैं 1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, 1.2 सीनियर एडिटर, 1.1.3 डिजाइनर। अब मैं जैसे ही प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में क्लिक करती हूँ, देन फिर एक एंट्री में, तो ऐसी एंट्री दिखेगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 1.1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में 54,000 का जैसे खर्चा अपना बुक हुआ है, उसमें उसने 2 मेरे कॉस्ट कैटेगरीज पूछे हैं, प्रोजेक्ट वाइज एंड नेचर वाइज। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट वाइज पे करती हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स मेरे बता देगा कि इसमें से आपको कौन से सिलेक्ट करना है। तो मैंने सेम जो मेरा यहीं पर मैंने इसलिए लेजर और कॉस्ट सेंटर का नाम सेम रखा है कि व्हाइल एंटरिंग एनी वाउचर अपन को कॉस्ट सेंटर में कोई भी दिक्कत ना है। जो मेरा लेजर नेम है वही मेरा कॉस्ट सेंटर है, तो इससे जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं व्हाइल सिलेक्टिंग द कॉस्ट सेंटर वो मिनिमाइज हो जाती है, बट एलिमिनेट नहीं होंगी। वो तो हमेशा चांसेस रहेंगे कि आप गलती हो सकती है कॉस्ट सेंटर सिलेक्शन में, बट वो गलती को कैसे अपन देख सकते हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर तो 1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ही सिलेक्टेड है, और नेचर वाइज भी वो कैटेगरी आपको बताएगा, फिर आपको उसमें कॉस्ट सेंटर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि कितने अभी तक आपने कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करे हैं। और फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड नहीं है, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर में वो नहीं है जो मुझे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट ऑप्शन, ये भी एक टैली प्राइम में नया है। वरना अपन को क्या करना रहता है ERP 9 में कि अगेन बैक जाओ, क्रिएट में जाइए, क्रिएट से फिर वो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करिए, देन यहाँ पर एंटर करो, या फिर एक शॉर्टकट अपन को याद रखना पड़ता था ऑल्ट सी से भी हो जाता था ERP 9 में। बट ये टैली प्राइम में एक नया है कि यहाँ पर उन्हें सब कुछ आपको मतलब आप कुछ रटने या कोई भी कीवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एवरीथिंग इज इन दी विंडो, कि यहाँ क्रिएट में आप क्लिक करेंगे और वो विंडो पॉपअप हो जाएगी, जो कि अपना क्रिएशन से होता था। तो यहाँ पर भी सैलरी एक्सपेंस जैसे कि सिलेक्ट था, तो ये सिलेक्शन अपन हर एक एंट्री में आपको पूछेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही सेम है। अब मैं ओवरहेड में जाके जैसे रेंट एक्सपेंस है, अब यहाँ देख सकते हैं आप कि लेजर अपना 4.1 रेंट था, जिसपे प्रोजेक्ट वाइज में जो कॉस्ट सेंटर है वही 4.1 रेंट सिलेक्टेड है, एंड नेचर वाइज में मैंने रेंट एक्सपेंस सिलेक्ट करके रखा है। ये ऐसा मेरा इनकम एक्सपेंडिचर होगा। देन डिस्प्ले में अपन आएंगे, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको कॉस्ट सेंटर वाइज जितनी भी रिपोर्ट है वो सब डिस्प्ले हो जाएगी। तो कैटेगरी कॉस्ट में ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी अपन खर्चे बुक कर लेंगे तो फिर प्रोजेक्ट वाइज और नेचर वाइज ऐसे रिपोर्ट दिखेगा, जिसमें आपको स्टैंडर्ड खर्चे वाइज भी दिखेंगे एंड प्रोजेक्ट वाइज भी अपना खर्चे दिखेंगे। तो यहाँ से आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं और इजी रहेगा, वरना पहले एक्सेल में आपको करना रहता था, तो इससे आप डायरेक्टली आप टैली से जनरेट करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी मैं आपको ये रिपोर्ट बता चुकी हूँ कि इससे क्या है कॉस्ट सेंटर वाइज। अभी अपन ने कैटेगरी वाइज देखी थी रिपोर्ट, जो अपन ने 2 कैटेगरीज बनाई थी नेचर वाइज एंड प्रोजेक्ट वाइज, उसमें कॉस्ट कैटेगरी समरी से वो रिपोर्ट जनरेट होती है और कॉस्ट सेंटर वाइज अपनी कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से रिपोर्ट जनरेट होगी। इसमें अपन ने जितने भी कॉस्ट सेंटर्स बनाए हैं सारे जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ मैंने लिब्रा फाउंडेशन सिलेक्ट करा, तो आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट ऐसे आ जाती है, कितना ग्रांट यूटिलाइज किया है और कितना लिब्रा फाउंडेशन का खर्चा है। जैसे मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो लिब्रा फाउंडेशन के फर्दर अंदर जो सपोर्ट कॉस्ट है, प्रोग्राम कॉस्ट, वो आ जाएगा। देन सपोर्ट कॉस्ट पे फर्दर एंटर करने पे उसके स्पेसिफिक बजट लाइन आइटम्स हैं वो आ जाएंगे, सैलरी एंड बेनिफिट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ट्रैवल एंड रिलेटेड एक्सपेंस, ऑडिट, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग।
वैसे ही प्रोग्राम कॉस्ट में outcome 1 training as per work plan, training of CVs, training of elected representatives, फिर capacity building. बस it is a utilization certificate format. आप यहाँ से भी एक अपन कैटेगरी समरी से भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं एंड एक कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट से भी बना सकते हैं. ये आप देख सकते हैं कोई भी कॉस्ट सेंटर, उसमें आपको उसका प्रोजेक्ट का नाम पता चल जाएगा कि क्या कौन सा प्रोजेक्ट है. जैसे 4.1 अजीम प्रेमजी फाउंडेशन था, उसके अंदर वो कौन से सब कॉस्ट सेंटर में क्लासिफाइड है. ओवरहेड कॉस्ट में अल्टीमेट कॉस्ट सेंटर है अपना रेंट. ऐसे आप कोई भी कॉस्ट सेंटर वाइज अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं. लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, मैंने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का भी बताया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट से भी लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स देख सकते हैं. और ERP 9 में अपन स्टैटिस्टिक्स से जाके देखते थे, तो वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि वो क्या है. जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पे, एक तो चार्ट ऑफ अकाउंट की अपना टैली प्राइम का फीचर है कि उन्होंने अपने गेटवे ऑफ टैली पे ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करके रखा है. अदरवाइज ERP 9 में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना रहता था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ये स्टैटिस्टिक्स से भी अपने अभी तक के जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो पता चल जाती थी कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कितने इशू हुए हैं, जर्नल्स कितने अपन ने बुक करे हैं, पेमेंट वाउचर्स कितने बुक करे हैं, रिसिप्ट वाउचर हो गया, रिसीट हो गया, एंड ग्रुप्स कितने क्रिएटेड हैं, लेजर्स कितने क्रिएटेड है, कॉस्ट कैटेगरी एंड उसकी लिस्ट. इस पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर ये देखिए ऊपर चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी लिखा हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स से भी जाके देख सकते हैं एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो गेटवे ऑफ टैली पे है ऑप्शन, वहां से भी आप देख सकते हैं. अब अपन देखते हैं लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट. लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट क्या बताता है कि जब अपन कोई एंट्री बुक करते हैं तो कॉस्ट सेंटर सिलेक्शन में तो मिस्टेक वैसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेजर नाम जो है वो ही अपना कॉस्ट सेंटर का नाम है. बट तब भी कभी कभार हो जाता है कि कॉस्ट सेंटर अपन ने कोई दूसरा सिलेक्ट कर लिया, तो उसको कैसे ट्रेस करेंगे, तो वो लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट से करते हैं. लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट से मैं करके आपको दिखा देती हूँ. अब ये 1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है. यहाँ पर मैंने कोई दूसरा सिलेक्ट कर लिया और ये सेव भी हो गया. अब इसको मैं कैसे ट्रेस करूं कि यह कौन कौन से ऐसे मेरे वाउचर्स हैं जहां पर मैंने कॉस्ट सेंटर गलत सिलेक्ट करे हैं. तो अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, लेजर ब्रेकअप. इसमें जैसे ही मैं इस लेजर की इंफॉर्मेशन देखूंगी तो लेजर का नाम है 1.1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. किस नेचर में क्लासिफाइड है, सैलरी एक्सपेंस, ये भी ठीक है. अब प्रोजेक्ट मेरे यहाँ दो क्यों दिख रहे हैं, एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और एक प्रतीका दिख रहा है, मतलब कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है. प्रतीका फाउंडेशन में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो BLI आइटम है वो किसका है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन. तो अपन यहाँ से भी ट्रेस कर सकते हैं. जिस प्रोजेक्ट का जो खर्चा है उस प्रोजेक्ट के अलावा कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिख रहा है, मतलब उस एंट्री में सिलेक्शन की गलती हुई है. ये एक ऑडिट पर्पस के लिए भी अपना काम आ सकता है. तो यहाँ पर अपन जाके उसको सही कर देंगे. अब आप देख सकते हैं कि 1.1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में सिर्फ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन दिख रहा है, मतलब और जितना खर्चा मैंने प्रोजेक्ट वाइज में बुक करा है उतना ही मेरा नेचर वाइज भी बुक्ड है.
एक और रिपोर्ट जनरेट होती है टैली में, वो रेशियो एनालिसिस की। वो भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जिससे अपन फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें काफी रेशियोज बताता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड ऑल। वो भी हेल्पफुल है टू एनालाइज माय फाइनेंशियल्स। गेटवे ऑफ टैली पे ही रेशियो एनालिसिस ऑप्शन दिखता है। आप देख सकते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सारे दिखते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है टैली का। जैसे मैंने अभी बताया, रेशियो एनालिसिस गेटवे और टैली पे ही आपके दिखता है। स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टैटिस्टिक्स में से भी अपन अकाउंट्स इंफॉर्मेशन अपन को अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब अपन आते हैं बजट कंपैरिजन में। बजट कंपैरिजन कैसे अपन टैली में कर सकते हैं। बजट कंपैरिजन, अपन ने सारे एक्सपेंसेस बुक कर लिए। अब अपन ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। तो ट्रायल बैलेंस पे जैसे मैं डिटेलिंग करती हूँ, तो ये ट्रायल बैलेंस अर्जुन फाउंडेशन का है, प्रोजेक्ट का नहीं, ये पूरे एनजीओ का है। इसमें आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में F10 ऑप्शन है, बजट वेरिएंस। इस पे आप क्लिक करेंगे एंड अजीम प्रेम जी या कोई भी आप बजट सिलेक्ट करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में बजट अमाउंट आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 14,05,000 का बजट है और कैपिटल कॉस्ट के लिए 1 लाख का है, जो कि फिक्स एसेट में दिख रहा है। और उसके बाद सेकंड कॉलम में एक्चुअल्स आ जाएंगे कि एक्चुअल्स कितने हैं। 14,05,000 का अपने पास बजट है और अपन ने अभी तक खर्चा कितना करा है, 12,57,764। और परसेंटेज भी ये शो करते हैं कि परसेंटेज वाइज कितना अपन ने एक्सपेंस के लिए, 89%। और आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वेरिएंस भी आता है कि अब 10% और है जो अपन इसमें और खर्चा बुक कर सकते हैं। ये तो हो गया टोटालिटी में। अब जैसे मैं इसमें शिफ्ट एंटर करूंगी तो ये मेरा ग्रुप वाइज आ जाएगा। अपन ने ग्रुप वाइज भी बजट डाला था। 1.1 प्रोग्राम में 819 का बजट था और अभी अपन ने एक्चुअल खर्चे कितने करे हैं, 678,350। और कितना इसमें गुंजाइश है खर्चा करने की, 140, दैट इज 17%। अब आप देखिए 1.2 एडमिन जो ग्रुप है वो तो मैंने ओवरशूट कर लिया। मुझे बजट मिला था 190 का और मैं यहाँ पर 2,03,100 का खर्चा कर लिया, मतलब 106%। तो इस बजट वेरिएंस रिपोर्ट से हमें अपना डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगा कि अपन कैसे कैसे फर्दर प्रोग्राम कर सकते हैं, किस बीएलआई में अपन को कितना खर्चा और करना है। और साथ ही साथ बजट वेरिएंस रिपोर्ट से अपन एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है, जो एडमिन खर्चा है अपने एनजीओ का, वो भी एलोकेट करने में हेल्प मिलती है कि किस प्रोजेक्ट में कितना एडमिन खर्चा बुक हो चुका है, किस में कितना नहीं हुआ है, कैसे अपन एलोकेट करें सो दैट कोई भी बजट ओवरशूट नहीं हो पाए। इससे अपन को ये डिसीजन भी अपन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप वाइज हो गया। अब मैं फर्दर इस पे क्लिक करूंगी तो अपना लेजर वाइज भी आ जाएगा, क्योंकि लेजर वाइज भी अपन ने डाला था वहां पर। अब देख सकते हैं 1.1 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में 280 का था और मैंने अभी तक कितना उसमें खर्चा कर लिया, 271.80 रुपीज, मतलब 96%। और कितना वेरिएंस है, 3% का, मतलब 3% में और खर्चा इसमें बुक कर सकती हूँ। वैसे ही जो ओवरशूट हो गया था अपन उसको भी देखते हैं कि कौन सा लेजर के, किस लेजर के कारण अपना ओवरशूट हुआ है। तो 1.2 एडमिन में अपना प्रोफेशनल फीस और एडमिन एंड अकाउंट सपोर्ट का खर्चा था। तो बजट मिला था 30,000 फॉर प्रोफेशनल फीस एंड फॉर अकाउंट सपोर्ट इट वाज 1,60,000। आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल फी के कारण तो नहीं हुआ, उसमें तो सिर्फ 97% ही है, बट जो अकाउंट सपोर्ट है उसमें
ओवरबुक्ड हो गया है अपना 108% से, तो 8% का वेरिएंस है इसमें। तो ये एक टैली की भी एक रिपोर्टिंग है जो कि बहुत हेल्प मिलती है। तो ये ERP 9 में भी है और एक टैली प्राइम में भी है, बस अपन को इसको यूज करना है। काफी हैं एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस जो यूज नहीं करते हैं, अलग से उनको एक्सेल में वर्कआउट करना पड़ता है। तो अगर अपन स्ट्रक्चर ऐसा डिफाइन करें कि हर एक ऑप्शन का यूज हो, तो आपको सारी चीजें टैली से ही पता चल जाएंगी। वैसे अगर मुझे लिब्रा फाउंडेशन का देखना है तो मैं F10 करूंगी। F10 में अगेन आई विल सिलेक्ट माय बजट एंड सी। लिब्रा फाउंडेशन में बजट है 13,29,800 का और अभी तक मैंने 56% ओवरऑल खर्चा बुक करा है इसमें। मैं इसमें फर्दर एंटर करूंगी तो इट विल शो मी ग्रुप वाइज एंड फर्दर आई विल एंटर, देन इट विल शो एज लेजर वेरिएंस। देख सकते हैं आप सैलरी एंड बेनिफिट में 543,200 का बजट है, जो कि मैंने अभी तक एक्चुअल कितना करा है 66% एंड कितना मैं और कर सकती हूँ 34%। ऐसे ही बाकी लेजर्स में भी वो आपको बताएगा। तो ये हो गया बजट वेरिएंस रिपोर्ट। प्रतीका फाउंडेशन का भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि उसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं अपने। तो उसमें आपको प्रोजेक्ट वाइज सिलेक्शन करना है। जैसे एजुकेट सोसाइटी में सिलेक्ट करी हूँ, तो एजुकेट सोसाइटी में आप देख सकते हैं 1529 का है बजट, देन एक्चुअल्स कितने हो गए हैं 1465, 820, 95% और वेरिएंस है 4% का। इसमें फर्दर क्लिक करूंगी तो मेरे को ग्रुप वाइज रिपोर्टिंग मिल जाएगी। फर्दर क्लिक करूंगी और तो मेरे को लेजर वाइज रिपोर्टिंग मिल जाएगी कि लेजर वाइज क्या है मेरा स्टेटस। अब यहाँ पर आपका फिक्स्ड एसेट का भी दिखेगा। फिक्स्ड एसेट का ये ऊपर है। फिक्स्ड एसेट में आप जाएंगे तो 270 का एजुकेट सोसाइटी में बजट था, जिसमें मैंने 251 खर्चा कर लिया है, 92% एंड वेरिएंस इज 7%। बजट वेरिएंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट बजट कॉलम आता है, देन एक्चुअल एंड देन वेरिएंस का कॉलम आता है। वेरियस रिपोर्ट्स में आपसे मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्वार्टरली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से जनरेट आप कर सकते हैं। नेचर वाइज रिपोर्ट इनकम टैक्स से कंप्लायंसेस को मीट आउट करने के लिए है। प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट अपने डोनर्स या जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके लिए है। एंड ट्रायल बैलेंस अपना प्रोजेक्ट वाइज आ सकता है। कैसे? कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से आप कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करेंगे एंड वो एक उस प्रोजेक्ट का ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड कर देगा। बजट कंपैरिजन, इनकम अपना ट्रायल बैलेंस से आप देख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों चीजें अपनी ट्रायल बैलेंस से बजट कंपैरिजन हो सकता है। कैश फ्लो, फंड फ्लो का भी ऑप्शन है टू चेक दी रिपोर्ट। रेशियो एनालिसिस भी आपने अभी देख चुका है। अब अपना लास्ट गो टू, जो कि टैली प्राइम का हीरो है। गो टू क्या है? एक सर्च बार है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी टैली के वर्जन आए हैं 7.2, ERP 9, कहीं पे भी ब्राउज का ऑप्शन नहीं है। आपको कोई भी रिपोर्ट देखनी है या तो आपको उसके कीवर्ड याद रखने पड़ते हैं कि DLCC to C कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप रिपोर्ट, या लेजर रिपोर्ट देखना है तो उसके लिए अपन को कीवर्ड याद रखना पड़ता था। बट ये टैली प्राइम में एक नया आया है गो टू, जिससे आप कोई भी रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। ये ट्रस्टीज, मैनेजमेंट, इन सबके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब भी ERP 9 तक तो मैंने देखा है कि कोई भी रिपोर्ट देखनी रहती थी तो वो सिर्फ अकाउंटेंट को बता देते थे ये रिपोर्ट दे दो। बट यहाँ पर आप जैसे ही ऊपर आप ये देख सकते हैं गो टू ऑप्शन,
तो गो टू में आप जैसे भी कोई भी क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी। ये देखिए गो टू में जैसे मेरे को अभी कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स देखनी है तो आप ये देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप लेजर आ गया, कॉस्ट सेंटर मंथली समरी आ गई, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मंथली मैंने इसमें कितने कैसे कैसे बुक करा है ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये मैनेजमेंट ट्रस्टीज उनके लिए, ओनर्स उनके लिए काफी यूजफुल है। यहाँ पर वो कुछ भी टाइप करेंगे एंड आपको वो ट्रायल बैलेंस चाहिए तो ट्रायल बैलेंस सी ट्रायल बैलेंस आ गया। नो नीड टू गो थ्रू डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड ट्रायल बैलेंस। तो दिस इज द हीरो ऑफ टैली प्राइम गो टू। और बस एक स्वर्णिम जी छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा अपने एंड से। हाँ जी ये गोटू का फ्रेंड्स आप जो टॉप बार देख रहे हो ना अपने टैली में, हाँ जी हाँ कैन जी जस्ट शो देम द टैली प्राइम। या तो दिस टॉप मेनू इज कंसिस्टेंट। ये हम जो रोजमर्रा की कोई भी जिंदगी में सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं ना, ये सारी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, उसमें एक टॉप बार होता है। तो आप सभी का एक लर्निंग कर्व या कुछ सीखना ना पड़े या मिनिमम एफर्ट से हम फटाफट प्राइम सीख जाए, ये सारे फीडबैक को ध्यान रखते हुए सर्च कैपेबिलिटीज, टॉप मेनू और कहीं से भी आप टैली में कहीं पे नेविगेट कर सकते हो प्राइम में यूजिंग ऑल दीज फीचर्स। तो अगर आप मान लीजिए कोई वाउचर पास कर रहे हैं तो वहां पे आपको स्टिल गो टू बटन दिखेगा और वहां से आप कुछ रिपोर्ट सर्च करके वो वाउचर पास कर सकते हो। तो अगर बिल्कुल आपको सही कुछ, जैसे ये हाँ यस, अब यहाँ सपोज स्वर्णिम जी पासिंग सम वाउचर, शी इमीडिएटली कैन गो टू एक any अपनी, report हाँ like cost center या chart of accounts I want to see, then I will click on chart of accounts and ledger लेजर की लिस्ट देख ली कि भैया वो बनाया है कि नहीं बनाया, वहां पर देख लिया। और फिर जैसे ही मैं इसमें जाऊंगी तो वो मुझे बताता भी है कि मैंने अभी तक कितनी रिपोर्ट ऑन कर ली है। शो ओपन रिपोर्ट, अभी तक मेरे क्या, मैं सबसे पहले पेमेंट वाउचर में थी, देन मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आई, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर में आई। तो सीक्वेंस ऑफ ओपनिंग ऑफ रिपोर्ट भी गो टू से अपन को पता चल जाता है। बैक भी मैं वैसे ही जाऊंगी, देखिए अगेन आई एम इनफैक्ट एक और चीज यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा, जी जी नो बिकॉज वी लव सो मच टैली प्राइम, नो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, यहाँ नो पे नो आप नो इट्स ओके। एक मैजिक बता सकते हो स्वर्णिम जी, कंट्रोल प्रेस करके रखिए किसी भी वाउचर पे, हाँ हाँ ओके ओके हाँ कंट्रोल प्रेस यस बस। स्विच टू। और अब राइट साइड देखिए आप, राइट साइड में कितने सारे ऑप्शंस खुल गए, बहुत यस सारे। चेंज मोड, मोड डिटेल्स, अभी आप शिफ्ट होल्ड करके रखिए, सॉरी ऑल्ट होल्ड करके रखिए, ऑल्ट, ऑल्ट ये देखिए ये फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डेटर डिफरेंट, हाँ डिफरेंट टाइप्स डेबिट ऑफ नोट डेबिट क्रेडिट नोट, नोट क्रेडिट नोट, ये आ गया। तो ये एट द सेम टाइम मतलब आपको अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप अटक गए ना तो ऑल्ट या कंट्रोल शिफ्ट करके एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिए। यस वैसे ये चेंज मोड भी यहाँ पर है कि आपको डबल एंट्री वाइज करना है, सिंगल एंट्री वाइज करना है, यूज फॉर कॉस्ट सेंटर, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो कि पहले यहाँ पर ERP 9 में दो ऑप्शन थे कि आपको सिंगल वाइज अकाउंट वाइज करना है या आइटम वाइज करना है। तो जैसे आपको कुछ ये एरो जो आप देख सकते हैं जर्नल वाउचर में, तो यहाँ से आपको फर्दर मिल जाएगा कि स्टॉक जर्नल भी आप यहीं से ओपन कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक भी। ये टैली प्राइम के फीचर्स हैं। और Yes, स्विच ma'am. टू जैसे आपने बताया जनक जी, स्विच टू से भी आप सर्च कर सकते हैं कोई भी, और गो टू से भी आप सर्च कर सकते हैं। स्विच टू से बस ये है कि आपके जितने भी रिपोर्ट्स ओपन हुए हैं उस वो डायरेक्ट आपको गेटवे ऑफ टैली पे ले जाएगा। अगर आप स्विच टू से कोई भी रिपोर्ट ऑन करते हैं, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स
या मैं बैलेंस शीट करती हूँ, तो इसके बाद मैं सीधे गेटवे ऑफ टैली पे आऊंगी। बट जैसे मैं गो टू से गई थी, तो गो टू से मैं जैसे जैसे मैं जिस रिपोर्ट में जाती जा रही थी, वैसे वैसे मैं बैक आती जाऊंगी। तो गो टू और स्विच टू में भी ये एक डिफरेंस है। तो और बाकी आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लुक है, और मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर ऑन द फेस ऑफ द टैली, जो कि पहले कहीं ना कहीं F11 F12 में रहती थी और हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे उतना। बट अब जब वो फेस ऑफ द टैली पे है, तो हम और एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ये टैली प्राइम में बेनिफिट है। Right, ma'am. So now shall we take the Q&A, ma'am? यस यस डेफिनेटली। या तो दोस्तों, अब मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कैसा लगा आपको सेशन, क्या फीडबैक है। AS टेक्नोलॉजीज, आदित्य जी, अनुराग सर, सुनीता मैम इज हियर विद अस, अभिजीत जी, अल्पेश जी, भरत सर, छायन जी, जगदीश जी, जास्मिन सर. So Ravi ji is asking, can you explain something about scenario management? सिनेरियो मैनेजमेंट अभी बट एनजीओ में तो उसका भी रिक्वायरमेंट है नहीं, बट उसको अपन मैं उनको पर्सनली फिर बता दूंगी सिनेरियो मैनेजमेंट। Yes, Ravi ji, if you can just drop in your coordinates, email and mobile number. ईमेल, हाँ मैंने Either- यहाँ पर आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं ईमेल आईडी, उस पे Yeah. आप कोई भी क्वेरी हो फर्दर वो आप पूछ सकते हैं। हाँ. आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं, या फिर अगर वो चाहते हैं कि मैं कोई एंट्रीज करके बताऊं या क्रिएट करके बताऊं बजट, तो मैं वो भी बता दूंगी। Yeah. So Ravi ji, for scenarios we will connect separately with you. A forum where we can take specific queries on development sector and Tally Prime. Meena ji, Jitendra ji. So any other queries? आज का सेशन कैसा लगा? Was it useful? So Seema ji is asking, so we have to purchase Tally Prime or right now मतलब क्या? Swarnim ji, can I take that one? Yes, you can definitely. सीमा जी, you did not have to purchase Tally Prime. ये Tally का ही ERP जैसे होता है वैसे ही ये Prime का एक Tally Prime एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्यूचर रिलीजेस जैसे कि E-invoicing हो गया या कनेक्टिविटी टू GSTN हो गया या E-banking हो गया, सारा कुछ अब Tally Prime पे आएगा। ERP अभी भी एग्जिस्ट करेगा, ERP आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, बट Tally Prime is our new platform which will have all the future capabilities. 1 point. सेकेंड, आपको परचेज नहीं करना टैली प्राइम। अगर आपका टैली सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो आपका एनुअल चार्जेस होता है टैली सब्सक्रिप्शन का, इफ दैट इज वैलिड, तो आप फ्री में टैली प्राइम इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। इनफैक्ट टैली प्राइम एक ही लाइसेंस से आप टैली प्राइम और टैली ईआरपी दोनों यूज कर पाओगे। एक डेटा सेट की आपकी एक प्राइम के लिए कॉपी बना लीजिए और एक डेटा सेट की आप ईआरपी की कॉपी बना लीजिए और प्राइम एक्सपीरियंस कीजिए। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू यूज इट। So yes, Jasmine Sai is also pointing out the same thing. Thank you, Jasmine ji. All users with valid TSS will be able to upgrade to Tally Prime. So please आप अपने Tally partner से contact कीजिए. He will be explaining you in detail. In fact, he will be happy to show you Tally Prime and its capabilities also. So, in fact, encourage your clients also to start migrating to Tally Prime because it is very critical कि future के सारे developments Prime पे आएंगे। एंड इजीली हैंडलिंग भी हो जाएगी अपनी अकाउंटिंग की। एब्सोल्युटली कुछ भी नया आता है तो हमें टेक्नोलॉजी में तो एटलीस्ट चेंज रेजिस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज़ दैट इज वेरी एसेंशियल। और जब वो इजी वे में जा रही है तो एज कंपेयर टू ईआरपी 9 तो टैली प्राइम इज वेरी इजी टू यूज। यस, मतलब आपको थैंक कुछ यू। सीखने की जरूरत नहीं है उसमें, आप के लिए सारी चीजें वही, जैसे मैंने आपको क्रिएट ऑप्शन बताया था कि आप अगर वाउचर क्रिएशन में कहीं पे भी अटक गए हैं व्हाइल डूइंग दी एंट्री, तो वहीं पर क्रिएट का ऑप्शन भी है। वरना अपन को ऑल्ट सी याद रखना पड़ता था कि ऑल्ट सी से वहीं पे क्रिएट होना पड़ता है, और जिसको याद नहीं है फिर वो बैक करके फिर देन क्रिएट ऑप्शन पे जाएगा, फिर वाउचर क्रिएट करेंगे। इनफैक्ट फोरम पे किसी ने पूछा कि इनवॉइसिंग की डेट क्या है, तो फ्रेंड्स इनवॉइसिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बिफोर 1st Jan, तो ऑल योर कंप्लायंस नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ। In fact, planned date is in last week of December. So definitely before 1st Jan, we are 100% sure of invoicing being available in Tally Prime. तो और the more reason कि आप जल्दी से Tally Prime पे आप familiar हो जाओ।
बिकॉज आई एम श्योर कि कुछ स्वर्णिम जी क्लाइंट्स तो होंगे इनके, एक का दुक्का एटलीस्ट 2-3 क्लाइंट्स तो होंगे विद मोर देन 100 करोड़ टर्नओवर। यस। कुछ नहीं, कुछ के तो और काफी कल सारे होंगे। शायद सेशन भी है आई थिंक टैली का इन ऑन ई इनवॉइसिंग। मैंने देखा था उसका कि 18th को। यस यस यस, तो ये आप मैं टैली डेफिनेटली सॉल्यूशंस पे, अटेंड करूंगी। yes yes ma'am, please. So anybody else, and in fact we are getting very good comments. Ke session was very informative and they liked it. Oh, thank So you. any other query, any other pertaining to Tally Prime, pertaining to the today's session? Sagar ji, Utsav sir, Vaibhav Srivastav ji, anything that you would like to add? So we'll just hang around what Jagdish ji is showing. No, So, actually, Vaibhav here. The session was very good and informative. No doubt, sir. No questions. Thank you Vaibhav ji. Hope you find it useful, and in Thank fact you. Thank you. ये एक Definitely, इनिशिएटिव definitely. है जहाँ पे स्वर्णिम जी also really volunteered for coming on a platform. मतलब we try to get good speakers every Thursday, so do watch out for Yes. invite from our side also. Done, Janak. Thank you Vaibhav ji. Thank you. So Swarnim ji, shall we close the session now? I think there are Yes. no more queries. Okay. Thank you Jitendra ji. Jagdish ji is asking please add some features for audit purposes. Jagdish ji, एक audit का पूरा session हम रख सकते हैं on Tally Prime. In fact there are a lot of features and capabilities. Swarnim ji, if you can just show him के कहाँ से वो audit कर सकते हैं, if you can just give a glimpse. So maybe Jagdish ji can explore on his own. Yes, definitely. In Tally Prime, I will open it. For audit purpose, जैसे कि मैंने अभी एक दो बताया था कि अगर गलती हो जाती है तो आप लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट से भी जा सकते हैं. अदरवाइज analyze and verification. In display more reports, there is analysis and verification, where we can do data analysis and voucher verification. Data analysis like verification of chart of account या verification of balances, current liability में क्या balances है, fixed asset में क्या है, आप यहीं से ही जाके एनालाइज कर सकते हैं. पेंडिंग कोई डॉक्यूमेंट्स है या ये सारे जितने भी फीचर्स हैं ये इससे भी आप एनालिस्ट कर सकते हैं. वैसे ही वाउचर वेरिफिकेशन में आप टैली अपन को यहाँ पर सारे वाउचर्स दे देता है. जर्नल वाउचर्स की अभी तक कितने डले हैं, आपको कितने वेरीफाई करने हैं, वेरीफाई कैसे आप कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर मैं इस वाउचर में जाती हूँ, ये मैंने देख लिया कि इसके अंदर क्या एंट्री हुई है. मेरे को उसमें अपने कमेंट्स भी मैं डाल सकती हूँ कि इसको मैं ऑन होल्ड पे रखूं या एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन चाहिए मुझे तो मैं एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन में चली जाऊंगी और अपने रिपोर्ट अपना नोट डाल दूंगी कि इसमें क्या मैनेजमेंट से क्लेरिफिकेशन लिखना है या कोई इंटरनल ऑब्जर्वेशन है, वेरीफाइड है, इट इज ओके करके इसमें डाल दिया. तो यहाँ पर आप 100% सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, मतलब 100% वाउचिंग भी हो सकती है, या फिर आप सैंपल वाइज यहाँ परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी सैंपल उठा सकते हैं. तो ये दो फीचर्स इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑडिट. Yes. So having said that, yes ma'am, got it. Ma'am, your audio was low bit. आपको ये समझ आ गया ना डेटा Yes. एनालिसिस एंड वाउचर. हाँ, Yes. इसके अलावा भी काफी फीचर्स है, बट इट वाज एन सैंपल कि अपन टैली से और क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं. Yeah. So having said that, now we will extend a vote of thanks to Swarnim ji. Swarnim ji, thank you so much. It was really great to have you on forum, and we request you to please be on our forum for such future sessions also. It was very interesting. And with that, thank you on behalf of the fraternity, thank you on behalf of the participants, and we will close the session now. Thank you so much, Janet. It was wonderful. Thank you.